अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, थाना खुर्डियांवाला के इलाके मकुआना में एक जालिम बेटी ने अपने आशना से मिलकर अपने बाप को कत्ल कर दिया और लाश को सेम नाला में डिस्पोज कर दिया। 8 माह तक ये खबर सबकी नज़रों से ओझल रही। आखिर 8 माह बाद ऐसा क्या हुआ कि पुलिस हरकत में आई और कातिल गिरफ्तार हुए। कत्ल किस बात पे हुआ, कातिलों ने प्लान कैसे किया, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना खुर्डियांवाला के इलाके मकुआना में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक जालिम लड़की ने अपने आशना से मिलने के लिए, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के लिए अपने ही बाप को कत्ल कर दिया। टीम मुजरिम कौन मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद है। हमारे साथ वो दुखी खातून मौजूद है जिसके सर का ताज छीन लिया गया, जिसकी अपनी ही बेटी ने अपने बाप को जालिमाना तरीके से कत्ल किया। कोशिश करते हैं इस दुखियारी माँ से बात करने की, वजह पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। माँ जी दस्यो ए वाकया की होया, किदों होया ते की होया? ਰਾਤ ਕੋ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਲੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਦੁਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਛਿੰਬਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਬੂ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੋਰ ਚੱਤਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਮਾਮੂ ਵੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਹਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਇਜ਼ਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਧਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿੱਧਰ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਹੈਣਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਪਿਓ ਇੰਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਸਾਂ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਪਿਓ ਆ ਮਾਂ ਜੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚਣਾ ਔਲਾਦ ਦਾ। ਪਿਓ ਕਦੀ ਵੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤਿਆਰੀ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਕहीं ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਾਈ ਕੌਮ ਨੇ, ਤੇਲੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛਿੰਬਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਤ ਕੋ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੇਟੇ ਗੜਵਾਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੜਵਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛ ਪੜੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕਰਾਚੀ ਤਿੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਬਲਾਦਰੀ ਤਿੱਕਰ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਰਮਾ ਸੜੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਇਹਨੇ 3 ਦਫਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਝੂਠਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਚ ਆਇਆ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਚਲੋ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾ। ਆਖੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਨੀਂਦ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਜਾ ਨੀਂਦ ਪਤਾ ਮੱਲੇ ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਖਵਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ? ਇੱਕ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਨਾਤੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਨਿਓਟ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ, ਜਵਾਈ ਮੇਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੈਰੀ ਸੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਠੀਕ ਆ? ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ? ਆਖਦੀ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੀ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਖਦੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਕੇ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੰਗਾ ਤੋਂ ਔਕੇ।
ਮਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 1200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਣਕ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਇਹ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ 4 ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਮਦਰਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ? ਜੰਮਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰਕਬਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਠੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮਗਰ ਨੇ, ਉਤਰੇ ਮਸਾਏ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾਦਰੀ ਤੇਲੀ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਪੁੱਤ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੇਕ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਤੀ ਬੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਘਰੋਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ? 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਜੜਾ ਵਾਲੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇ ਖਾ ਲਈ? ਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਰਪਟ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆਈ। ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੰਮਣ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਨਕਾਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੰਮਣ ਪਰਚੀ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਇਸ। ਤੇ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਪਿਓ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੋਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੇ ਕੱਚਾ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਝੁਲਕਾ ਕਰਸਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਘਰ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਘਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਟਾਕੀ ਟੋਪ, ਸੋਨੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਗਈ? ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜਿਸ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲੱਗੀ, ਬਿਸਤਰਾ ਪੂਰਾ, ਜੁੱਤੀ ਸਮੇਤ, ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਾਲਦ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੀ? ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਣ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਮੰਜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਪਾ? ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਮੰਜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਨੰਗੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਖੀ ਪੈ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਜੀ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਆਖਦੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮ ਕਾਵੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਆ ਜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਬਤੇਰਾ ਵੱਜੀ ਦਰ ਕੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਈ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਹੁਣ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਵਾਡੀਆਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਂ? ਮੈਂ ਆਪ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਨਾਲੀ ਰੋਜ਼ ਵੱਢ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ 2 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਲੀ ਚ ਉਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਜੇ ਨਾ ਬਦਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਾਡਾ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਮਾ ਸੜੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕੂਆ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਬੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਆਂਦੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਾ ਜੇਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਦੇਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਸਾਂ। ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ? ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨੇ ਜੇਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ ਘਰ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਰਸ ਆਵੇ, ਕੱਚਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੇਕਾ ਨਾ ਸਹੁਰਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਹੈ ਬਸ, ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖਣੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਫ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਾਂ ਜੇ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਖਰੇ ਸ਼ੋਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੱਡੀਆਂ ਰੁਲੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜਤੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰ ਛੱਡ।
ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ। ਇਹ ਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸੱਕੀ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਆ डरते। नाज़रीन किराम, एक दुखी माँ की फरियाद आपने सुनी, एक गम में डूबी हुई खातून की गुफ्तगू आपने सुनी। कैसे अभी तक वो अंडर थ्रेट हैं, कैसे अभी तक उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं। शायद इस माँ की बदनसीबी है कि इसने एक ऐसी डाइन को जन्म दिया जो अपना पूरा घर बर्बाद कर गई। एक लड़की जो अपनी हवस की खातिर अपने आशना से मिलकर अपने बाप को कत्ल करती है, और अब ढिठाई का वो लेवल है कि गिरफ़्तार होने के बाद भी वो अपनी माँ और अपने भाइयों को धमकियाँ दे रही है कि मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। हमारी वज़ीर आला एक ख़ातून हैं, वो एक माँ हैं। मरियम नवाज़ शरीफ भी एक वालिदा हैं, एक बहन हैं, एक बेटी हैं, और माँओं बहनों बेटियों का दुख वो बखूब जानती हैं। एक माँ फरियाद कर रही है हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू लिए, कि उसे इंसाफ दिया जाए और उसकी करम जली उस बेटी को ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि दोबारा किसी बेटी की जुर्रत ना हो कि वो अपने बाप को कत्ल करे। नाजरीन, जब भूख दरो दीवार पे होती है तो शायद ऐसे हालात होते हैं। ये मेरे साथ मौजूद नौजवान है जो देखने में बच्चा लगता है। भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। नाज़रीन इकराम, ये वो बदकिस्मत नौजवान है जिसकी बहन ने अपनी हवस की खातिर अपने आशना से मिलकर अपने बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, और लाश ऐसे ठिकाने लगाई कि 8-9 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक पुलिस लाश ढूंढ नहीं पाई। इस नौजवान की उम्र 19-20 साल है। देखने में ये एक बच्चा लगता है। गुर्बत, तंग दस्ती के बायस ये फैमिली कुछ बोलने से कासिर है, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस फैमिली को अभी तक धमकियां दी जा रही हैं। मैं कोशिश करता हूं इस नौजवान से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं, क्योंकि ये मुद्दई मुकदमा भी है। फ़हीम नामी ये नौजवान अपना दुख कैसे बयान करता है, कोशिश करते हैं आपको सुनवाने की। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम पुत्र, दस भी की होया? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। इस्लामाबाद रहंदा जी। काम शाम करदा? फ़हीम पढ़िया नहीं है तू? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੜਨ ਤੇ। किन्ने भैन भाई हो टोटल? 5 3 भाई हो तुसी? 3 ਭਾਈ 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀ। एक भाई तेरे तो वड्डा है, ਹਾਂਜੀ फिर तू है, ਹਾਂਜੀ। फिर नदीम है, ਨਦੀਮ ਨਹੀਂ, ਫਹੀਮ, ਸਲੀਮ ਤੇ ਅਬੂ ਬੱਕਰ। अबू बकर। ते 2 भैणां ने? ਹਾਂਜੀ एक भैन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਮੂ ਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਜਵਾਬ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਰਾਤ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲੀ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਮੀ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ 6 ਵਜੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੱਖੂਆਂ ਨੇ। 6 ਵਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਾਲਦ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਭੈਣ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ। ਹੋਰ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਫ਼ਹੀਮ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਧਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਕੈਟ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਆ, ਬੰਦਾ ਗੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਨੇ? ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ? ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ
ਚਲੋ ਸਵੇਰ ਸੇ ਵੇਖੀ ਜਾਸੀ ਤੇ ਚਾਹ ਅੰਮੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪਤੀਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਬੂ ਲੜਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਗਏ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਚਾਹ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਲਦ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਦਸਤੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਲਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪੇਟੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਰਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਲਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਗਾਇਬ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਗਾਇਬ ਕਰ। ਵਾਲਦ ਵੀ ਗਾਇਬ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ। ਮਹਿਰਾਨ ਵੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਬਥੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਉਠਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੇਟ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਏਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਰਕੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਦੀ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਸ ਮੈਂ ਚਾਹ ਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਦੀ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਹੀਮ, ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਸੁਬਹ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਪਿੰਡੀ, ਕਰਾਚੀ ਸਾਰਾ ਫਿਰਿਆ। 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਲੱਭਣ। ਇਹਦੂ ਪਤਾ ਕਰ ਉਹਦੂ ਪਤਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਲੱਭਦੇ 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 ਇੱਥੇ ਮੱਕੂਆਣੇ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਫਹੀਮ ਪੁੱਤ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ? ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਈ, ਪੱਕ ਹੋ ਗਈ ਬਲਕਿ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਪਰਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਇਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਛੱਡੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਆ ਹੋਈ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇੜਾ ਰਖਾਇਆ 50 ਲੱਖ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹ ਬੈਗ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਚੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਪੀਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਪਰਿਆ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਂਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਈਦ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, 20 ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀ? ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਆਣ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਦੀਮ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਆ ਬਹਿਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਦੱਸ ਆ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ
नाज़रीन किराम, ये मजलूम ख़ानदान सिर्फ अपने घर के सरबराह से ही महरूम नहीं हुआ, बल्कि गमों का एक पहाड़ है जो इन पे टूट पड़ा। एक दुखियारी माँ फरियाद करती है, एक बेबस बेटा हाथ जोड़कर अरबाब इख्तियार के सामने सवाल करता है कि क्या इनकी डीएनए सिस्टर, इनकी माँ जाई, इनकी बहन अगर जालिम है तो क्या कोई ऐसा कानून नहीं है कि उसे ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि ऐसी ख़वातीन, ऐसी लड़कियाँ, ऐसी बेटियाँ जो अपनी हवस की खातिर अपने वालिदैन को कत्ल करने से दरेग नहीं करती, उन्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि तमाम लोगों को इबरत हो और ऐसे किसी का घर दोबारा ना उजड़े। नाज़रीन, साल है 2025 और अगस्त का महीना है। फैसलाबाद में थाना खुर्डियांवाला के इलाका मकुआना के करीब एक आबादी है चिश्त नगर। वहाँ पे एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसने इंसानियत को शर्मा दिया। एक खातून ने अपने आशना से मिलकर अपने ही बाप को कत्ल कर दिया। अब साल 2026 में ये केस रिपोर्ट होता है और पुलिस हरकत में आती है। इतना ताख़ीर से रिपोर्ट किया गया केस जब पुलिस के इल्म में आता है तो महज चंद दिनों के अंदर पुलिस इस तमाम केस का खुलासा कर देती है। क्यों कत्ल किया गया, किस वजह से ये कत्ल हुआ, कत्ल होने वाला बुनियादी तौर पर कौन था, क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे कातिलों के, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना खुर्डियांवाला सब इंस्पेक्टर मार गुलजार सपरा। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये क्या केस है? 2025 में अगस्त में एक मर्डर होता है और वो रिपोर्ट 2026 में हो रहा है। आपको ये रिपोर्ट कैसे हुआ? क्या ज़राए से या बाकायदा तौर पर मुद्दईयान आपके पास आए और फिर क्या डेवलपमेंट्स हुए इस पर? जी, हमारे पास मुद्दई आए थे। जो कत्ल था ना, वो बड़े ही मनसूबा बंदी से और उसको उन्होंने बड़ा छुपा के किया था ताकि पता ना चले। यानी कि उसमें हाथ की सफाई बहुत ज़्यादा थी लेकिन कत्ल छुपता नहीं है। और कैसे इसको एग्जीक्यूट कैसे किया गया, कैसे प्लान किया गया, हमारे नाज़रीन को बताइएगा ताकि उन्हें पता चले कि हमारी पुलिस पेशा वाराना जो है वो महारत की हामिल है कि केस रिपोर्ट होने के बाद कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुई। जी, ये भी इस तरह था कि ये जो मकतूल है मुतवफ़ी, इसकी बेटी है आमना, उसके अपने महल्ले के लड़के के साथ दोस्ती होगी तो ये पसंद की शादी करना चाहते थे और वो अशरफ नामी जो मुतवफ़ी वो इसमें बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। वो मना करता था कि ये मकतूल जो है ये उस आमना का वालिद है। जी बिल्कुल, अशरफ नामी ये उसका वालिद था। क्या उसमें रुकावट था? उन्होंने फरमाइश की, ख्वाहिश का इजहार किया कि हम शादी करना चाहते हैं, वालिद नहीं मान रहा था? हाँ जी, इन्होंने ख्वाहिश की थी लेकिन वो नहीं मान रहा था, तो फिर इन्होंने उसको रास्ते से हटाने का फ़ैसला किया। ये भी जैसे आपको पहले केस में बताया गया था, इसमें भी इन्होंने पहले नींद वाली गोलियां दी, गोलियां दे के पूरी फैमिली को सुला दिया गया। फिर जब वो बेहोश हो गए, इन्होंने समझा कि ये अब बिल्कुल भी जागने वाले नहीं हैं, तो फिर उसका जो आशना था नदीम नामी वो भी घर में आ गया। आमना पहले से मौजूद थी, तो इन्होंने उसका गला दबाया और दूसरे ने मुँह पर हाथ रखा और जब वो बाबा जहाँ बहाक हो गया तो उसके बाद फिर इन्होंने एक अगला नया प्रोग्राम किया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, क्या इस जो मकतूल है इसकी उम्र क्या थी? क्या ये इसकी जो एक बॉडी रेजिस्टेंस होती है वो इस काबिल नहीं थी? क्या इतनी गहरी, इतनी बड़ी डोज दी गई थी, इतनी हाई पोटेंसी की डोज दी गई थी कि इसका जब सांस भी दबाया गया इससे होश नहीं आया? क्योंकि जब इस तरह का काम होता है तो इंसान ज़ाहिर है जान जाते हुए जो है बड़ी तकलीफ़ महसूस करता है। मज़ाहमत या इस तरह का कोई शोर, कोई किसी तरह की कोई चीज़ बाहर नहीं आई उस वक़्त, या इतना परफेक्ट इनका प्लान था कि उसकी कोई सांस भी बाहर नहीं निकलने दी गई? जी बिल्कुल, इनकी एग्जीक्यूशन इतनी परफेक्ट थी कि वो बेचारा बोल भी नहीं सका। इवन जो बाकी फैमिली थी उनको भी पता नहीं चला, क्योंकि एक तो हैवी डोज इस्तेमाल की गई, ऊपर से जो बाबा था बुज़ुर्ग जो मुतवफ़ी था वो उम्र रसीदा आदमी था, उसकी उम्र इतनी थी कि वो फिर उसमें हिम्मत नहीं थी कि आगे से वो इसमें मुज़ाहमत कर सके। कत्ल कर दिया इन्होंने, गला दबाकर मार दिया, पहले ट्रैंकुलाइज़र दी गई, फिर मार दिया गया। फिर कहाँ गई उसकी बॉडी, कैसे गई डिस्पोज ऑफ की इन्होंने, कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्लान किया? उसके बाद ये बुज़ुर्ग की एक गाड़ी थी महरान, वो घर में खड़ी हुई थी। इन्होंने ये किया कि बाबे का जो बुज़ुर्ग का बैग था उसमें उसके कपड़े भी डाल लिए, बैग को उसकी गाड़ी में रखा और उसकी डेड बॉडी को भी गाड़ी में ही रख दिया गया। उसके बाद ये दोनों लेके निकल गए रात की तारीकी में।
ये जो सामान था उसका रखने का, ये जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता चला, इंकशाफ ये किया इन्होंने कि उसको हमने इसलिए रखा ताकि घर वालों को शक ना पड़े, वो यही समझें कि बाबा जो है मुतवफ़ी खुद ही अपना सामान लेके वो घर से चला गया है। क्या ज़ाहिर है आपने इन्वेस्टिगेट किया होगा, क्या पहले भी वो बुज़ुर्ग जो हैं वो घर से चले जाते थे कुछ दिनों के लिए? ज़ाहिर है एक अनयूजुअल काम जब होता है, जब एकदम से आप रूटीन नहीं है एक शख्स की और आप कहते हैं कि जी वो बैग लेके चला गया है, तो फिर भी कान खड़े होते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो पहले कहीं चले जाते होंगे काम के सिलसिले में, कहीं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए कुछ दिन के लिए, तभी उनके जहन में ये ख्याल आएगा कि इनका बैग या इनका सामान भी साथ रख लेते हैं? नहीं, इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन इन्होंने अचानक से ये प्लान बनाया कि जो है हमारी तरफ को ऐसा शक ना पड़े। फिर गाड़ी में ही उसको रहने दिया या क्या किया आगे, इन्होंने कैसे इसको डिस्पोज कैसे किया? उसको गाड़ी में ही रहने दिया, इसके बाद लेके गए सेम, जो आपको बताया मकुआना में सेम आती है, उधर गाड़ी से निकाला है और उसकी डेड बॉडी को नीचे इन्होंने फेंक दिया है। सेम के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया? जी बिल्कुल ऐसे ही सेम। फिर गाड़ी वहीं खड़ी रहने दी या गाड़ी को वहाँ से ले गए? गाड़ी को वहाँ से ले गए और जो नदीम था इसने अपने इस्तेमाल में रखी, उसको उधर घर में शो नहीं किया, बारों बार अपने खुद चलाता रहा, उसको ड्राइव करता रहा। जी आपने बताया गुलजार भाई कि नदीम उनका मोहल्लेदार भी था, उसी इलाके में रहने वाला था, तो जब ये मकतूल की गाड़ी को अपने इस्तेमाल में लाता रहा, इस्तेमाल करता रहा, इलाके में किसी की नज़र नहीं पड़ी या फिर इसने किसी और जगह पे, किसी और शहर गांव देहात में जो है इसको रखा होगा कि मैं वहाँ जाया करूँ, वहाँ से गाड़ी को अपने इस्तेमाल में लाया? नहीं, ये इस तरह करता था कि किसी वीराने में खड़ी कर देनी, जहाँ कोई बंदा देख रहा हो ये ख़राब होगी, इसको खड़ी रहने तो मैं सुबह ले जाऊँगा। कभी कभार ये पंप के ऊपर खड़ी कर लेता, जो पेट्रोल पंप है उधर खड़ी कर देनी, और जो गार्ड है उनको कहना कि यार मैं जा रहा हूँ काम है तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं सुबह आऊँगा, ये ख़राब होगी, इस तरह की कहानियाँ सुनाता रहा। तो फिर इतना ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, 7-8 माह के बाद फिर वो इसने जब तंग आ गया तो इसने फिर इसको बेचने का फ़ैसला किया। बेच दी फिर इसने? हाँ जी बिल्कुल, ये जब बेची है तो फिर इसकी बायोमेट्रिक होनी थी, बायोमेट्रिक से फिर जब इसके घर वालों को कोई शक पड़ा तो फिर वो हमारे पास थाने में आ गए। ये आपने इनसे ये नहीं पूछा कि अगस्त गुज़र गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तकरीबन आधा साल, आधे से ज़्यादा साल गुज़र गया, दोबारा अप्रैल का जो है वो एंड चल रहा है, क्यों इतनी देर तक उनको जो है वो ये नहीं लगा कि जी हम 8 माह हो गए हैं, हमारे घर का सरबराह, हमारा वालिद मिसिंग है, क्यों उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया? क्या ये भी किसी साजिश का, कंट्रोवर्सी का हिस्सा थे, या फिर ये अपने तौर पर ढूंढते रहे, या फिर खुदा की मर्ज़ी समझ के खामोश हो गए? क्या आपने इनसे नहीं पूछा मुद्दईयान से कि भाई 8 माह गुजर गए, आप लोग कहाँ थे? वो यही बताते हैं कि हम अपने तौर हमने बहुत ज़्यादा तलाश किया, अभी भी तलाश में लगे हुए थे, कहीं ना कहीं हमें मिल जाए। तो इस साइड पे जब गाड़ी की जब बात हुई है ना, तो फिर उनको शक गुजरा और वो थाने आए। उसके बाद फिर हमने विद इन नो टाइम इस केस को ट्रेस भी कर लिया और मुलजमान को भी पकड़ लिया है। गुलजार भाई, ये यहाँ पे हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा इंटरेस्ट का पॉइंट है कि 8 माह तक मुद्दईयान खामोश रहते हैं, फिर वो पुलिस से रुजू करते हैं। पुलिस को हम इसको ऐसे ही रिपोर्ट करेंगे कि पुलिस को फ़र्ज़ करें 1 हफ़्ता पहले जो है वो इत्तला मिलती है कि फ़लाँ जगह पे एक बाबा जी जो हैं वो मिसिंग हैं, अब वो ज़िंदा हैं, मर्डर हो चुके हैं, इस बात का उन्हें कोई इल्म नहीं होता। पुलिस टेकअप करती है और पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। कितने दिन लगे आपको ये सब कुछ क्रैक करने में, सारे हक़ाइक़ को सामने लाने में और मुलज़िमान को गिरफ़्तार करने में? जी, जब ये हमारे पास कंप्लेनेंट पार्टी आई है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इनकी FIR का अंदराज किया, उसके बाद फिर हमने ये टीमें रवाना कर दी, चौकी मकुआना के जो इंचार्ज हैं उनको भी साथ लिया क्योंकि उनका एरिया है। हमने सबसे पहले तो ये देखा कि मुलजमान को अरेस्ट किया जाए विद इन नो टाइम। उसके बाद फिर हमने जब गाड़ी की वो तलाश शुरू कर दी, वो किधर खड़ी है, क्योंकि वो बायोमेट्रिक का ही पता चला था, गाड़ी सामने नहीं थी। फर्दर हमने जो उनके महल्लेदार थे या दूसरे लोग, उनसे भी पूछा कि ये आपको रिपोर्ट हुआ है माजरा या नहीं हुआ। इस तरह हमने जब तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया, मुलजमान गिरफ़्तार किए, तो उन्होंने ये सारी स्टोरी बताई कि हमने 28 और 29 की दरमियानी शब ये बाबे को कत्ल कर दिया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को सेम में फेंक दिया है। उनकी पॉइंटेशन के ऊपर फिर हम सेम नहर के ऊपर जाते हैं, डेड बॉडी को हमने तलाश किया, लेकिन उसकी कोई इस तरह की हमें आसार नज़र नहीं आए, क्योंकि जो सेम का वो जो गंदा पानी है उसमें इतने जहरीले केमिकल होते हैं। हमारे यहाँ इतने डाइंग यूनिट्स हैं, केमिकल यूनिट्स हैं, और सब की जो वेस्ट है वो इसी सेम नाले में जाती है। शायद वो पानी कम और केमिकल की जो है ना वो नहर ज़्यादा है कि उसमें प्योरली एसिड्स और केमिकल्स होते हैं, तो हो सकता है कि जहाँ उन्होंने डिस्पोज ऑफ की हो वहाँ वो गल सड़ के तो वो डीकम्पोज हो चुकी हो सारी। जी शोएब भाई, वो पानी तो है ही नहीं,
वो जितना भी वो जहरीले और फासद वेस्टेज ही है उसमें पानी का तो कुछ भी नहीं है, तो उसमें जब डेड बॉडी जाती है तो फिर वो जल्द अज जल्द गल सड़ जाती है, और इसको तो अभी 8 माह हो गए हैं। कितने मुल्जिमान हैं इस सारे केस में जो अरेस्ट में हैं? कितनी आसानी से ये क्रैक हो गए, या फिर आपको भरपूर मेहनत करना पड़ी, आपको उनके सामने जो ऐसे शवाहिद रखने पड़े जिसकी वो तरदीद ना कर? जब इनको गिरफ्तार किया तो वो तो बिल्कुल लाइलम थे, उसको बिल्कुल प्रिटेंड कर रहे थे कि हमें कोई इल्म नहीं। यस बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से उनका जो कन्फेशन है वो हमने जब उनके आगे एविडेंस रखे, क्रॉस क्वेश्चनिंग की, उनको इंटरोगेट किया गया, तो उसके बाद फिर वो ब्रेक हुआ और उन्होंने ये सारा इंसिडेंट जो है वो हमें कैसे आप कड़ी से कड़ी मिलाते हैं? क्या है जादू, ऐसा क्या है आपके पास कि आप जादू की छड़ी घुमाते हैं और वो मुल्जिमान, शातिर मुल्जिमान जो अपनी ज़िंदगी के साथ 8 माह गुजार चुके हैं, वो जो कहानियों के एंड पे होता है कि और सब हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे, उन्होंने अपने रास्ते का कांटा जो है वो हटा दिया, वो उन्होंने शादी कर ली, अब वो गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, बड़े हंसी खुशी गुजार रहे हैं। क्या जादू की छड़ी आपने घुमाई कि उनके सामने क्या क्या चीज़ें आपने रखी कि भाई ये था, ये था, ये था, अब बताओ, और फिर वो क्रैक हुए? देखिए जी, झूठ की कोई ताकत नहीं होती। जब बंदा एक बार झूठ बोलता है तो 2 से 3 मिनट बाद वो फिर उसी बात से वो इनहराफ कर जाता है, वो समझता है कि नहीं जी ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बात थी। और जब उसके जो को अक्यूज्ड है उसको इंटरोगेट करते हैं तो वो कोई और स्टोरी बता रहा होता है। फिर जब उनको हम कन्फ्रंट करवाते हैं तो उसके बाद हमारे सामने जो चीज़ें आती हैं वो असल स्टोरी होती है। गुलजार भाई, आपके साथ ही टीम मुजरिम कौन ने 2-3 प्रोग्राम्स ऐसे किए, मुतअद्दद केसेस में जो मर्डर केसेस थे उसमें विक्टिम को मर्डर करने से पहले बाकायदा ट्रैंकुलाइज़र देकर, नशा आवर अद्वियात देकर सुलाया गया। क्या किस हद तक जो है ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हमारी फार्मेसी वाला माफिया जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कि बग़ैर किसी सर्टिफाइड डॉक्टर की पर्ची के अब जब आप किसी को फ़रोख्त कर देते हैं तो क्या उनके ख़िलाफ़ भी तादीबी कानूनी कार्रवाई नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हम जब इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, हम जब सरकारी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, क्या पुलिस उसमें किसी महकमे को लिख नहीं सकती कि खुदारा इस पे भी कंट्रोल करें, क्योंकि इतनी आसानी से ऐसी अद्वियात का मिलना वो एक जुर्म को बढ़ावा देने के बराबर है? देखें जी, ये इस तरह की जो अद्वियात हैं उसको वही समझते हैं कि स्ट्रेस वाली हैं, लेकिन उनको जब ओवरडू किया जाता है तो फिर उसका अल्टीमेटली ये इम्पेक्ट तो होता है ना कि उसमें बंदा फुल बेहोश हो जाता है। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको हम लेटर भी लिख रहे हैं कि ये बगैर किसी तस्दीक के इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जाए। अब मुल्ज़िमान दोनों, वो खातून उसका आशना, वो आपकी हिरासत में है, केस मजबूत है, सज़ा दिलवाई जाएगी? जी बिल्कुल जी, आल्दू हमें डेड बॉडी तो नहीं मिल सकी, लेकिन उसके बावजूद हम इस तरह का केस तैयार कर रहे हैं कि मुल्ज़िमान को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाई जा सके। बहुत शुक्रिया गुलजार भाई। नाज़रीन इकराम, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना खुर्डियांवाला सब इंस्पेक्टर मार गुलजार सप्रा हमारे साथ मौजूद थे। ये वो काबिल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिसने थाना खुर्डियांवाला में दर्जन भर से ज़ायद केसेस को ऐसे क्रैक किया कि ना सिर्फ आला पुलिस हुकाम बल्कि खुर्डियांवाला के रिहायशी लोग भी हैरान हैं कि कोई ऑफिसर इस हद तक काबिल कैसे हो सकता है कि जिस केस में हाथ डालता है महज चंद घंटों के अंदर ना सिर्फ उसे क्रैक करता है बल्कि असल हकाइक भी सामने रख देता है। हमने गुज़श्ता दिनों रिपोर्ट किया एक ऐसा नाकाबिले यकीन केस जिसमें एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिलती है पुलिस को, और ये वो पुलिस ऑफिसर है जिसने इसे ज़ाती इंटरेस्ट लेकर उस अनआइडेंटिफाइड बॉडी को, जिसे शायद पुलिस डिपार्टमेंट लावारस समझकर अमानतन दफन करने ही वाला था, इस पुलिस ऑफिसर ने उस पे पर्सनल इंटरेस्ट लिया। उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको लेकर ये सेफ सिटी गए, ख़ुद उस पे इंटरेस्ट पुट करके, जिसको एक्नॉलेज किया सीपीओ फैसलाबाद ने, इस टीम को शाबाश दी और उसको आइडेंटिफाई करवा कर इसे बाकायदा इस डेथ को एक मर्डर और फिर मर्डर को इन्वेस्टिगेट करते हुए मर्डरर्स को ना सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि आज वो कानून के कटहरे में है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि 8 माह पुराना कत्ल जो है वो जैसे ही रिपोर्ट हुआ महज चंद दिनों के अंदर इस नौजवान काबिल ऑफिसर ने तमाम मर्डर्स को सामने लाया और अब वो कानून के कटहरे में है। अगर हमारी पुलिस इसी डेडिकेशन से काम करती रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे शहर अमन का गहवारा हो।
नाज़रीन इकराम, रिश्तों के तकद्दुस की पामाली का एक और वाक़या और एक और पेशा वाराना महारत फैसलाबाद में खुरड़ियावाला पुलिस की टीम मुजरिम कौन आज बात कर रही है उस अफसोसनाक वाक़े की जिसमें तकरीबन 8 माह तक एक कत्ल छुपा रहता है। जैसे ही पुलिस को ये कत्ल रिपोर्ट होता है, पुलिस हरकत में आती है और ना सिर्फ इस कत्ल को ट्रेस आउट करती है बल्कि मुलजिमान को हिरासत में भी ले लेती है। टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद हैं SHO थाना खुरड़ियावाला सब इंस्पेक्टर आतिफ शहजाद किच्ची। आतिफ भाई से पूछते हैं कि ये क्या मामला है, किस तरीके से ये रिपोर्ट होता है और कैसे इस पर डेवलपमेंट्स होती हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, बताइएगा ये क्या केस है जिसमें फाइनली जब आपकी फाइंडिंग्स होती हैं तो अपना ही घर का भेदी जो है वो लंका ढाता है, अपना ही खून जो है वो खून का प्यासा होता है, ये क्या माजरा है? शुएब भाई, आज से 8-10 दिन पहले एक गरीब औरत मेरे पास आती है। वो मुझे बताती है कि मेरा जो खामद है उसके पास एक मेहरान गाड़ी थी, वो पहले भी घर से निकल जाता था, 10-10 दिन 15-15 दिन घर नहीं आता था। तो हम उसको हमने उसको तलाश किया है, अब तो उसको 7-8 माह हो गए हैं, वो आया ही नहीं घर में। तो उसकी एक मेहरान गाड़ी थी, हमें पता चला है कि वो गाड़ी जो है एक शोरूम पे खड़ी है। शोरूम वालों ने हमें बताया है कि इस गाड़ी को एक नदीम नामी शख्स बेचने के लिए आया है। तो उसके कागजात जो वगैरह हैं वो मेरे खामद के नाम है। मुझे पता करके दें कि अगर ये गाड़ी जो है नदीम के पास है तो फिर मेरा खामद किधर गया। हम जब उसकी बात सुनते हैं, सुन के हम सारे को उसको बुलाते हैं, नदीम को, उससे बात करते हैं। जब वो बात करता है तो हम उसका चेहरा पढ़ लेते हैं कि इसमें कोई ना कोई डाउट है। जब उसको हम मुकम्मल इंटरोगेट करते हैं, तफ्तीश करते हैं, तो ये सारा जो माजरा है ना खुल जाता है। वो हमें बताता है कि अशरफ नामी जो है जिसकी ये गाड़ी है, मैं उसकी बेटी आमना से मोहब्बत करता था। हमने 28 जो है अगस्त 2025 उसको प्लान बनाया। आमना ने अपने घर वालों को नशे की गोलियां दे दी। जब वो सारे सो गए तो मैं रात को 11 बजे आया घर में। मैं और आमना ने मिल के उसका गला दबाया, बाबे का दबा के उसी गाड़ी में उसकी लाश डाली। लाश डाल के हम एक करीबी पेट्रोल पंप जो है उस पर उसकी गाड़ी खड़ी करके ऊपर कपड़ा डाल के आमना अपने घर आ गई और मैं अपने घर चला गया। लाश जो है ये उस गाड़ी में थी या इसको डिस्पोज ऑफ कर चुके थे? ये नहीं, ये लाश जो है उस गाड़ी में ही रही, उस पंप पे ये गाड़ी खड़ी रही रात सारी। तो ये अपने घर चले गए। इस तरह उनको शक भी ना हुआ कि बाबा जिस तरह पहले भी घर से निकल जाता था अब भी निकल गया होगा। रात को जब घर वाले उठे, उन्हें संभाला, उन्होंने कहा शायद बाबा निकल गया। उन्होंने आमना से पूछा, आमना ने कहा मुझे नहीं पता बाबा किधर चला गया है। उसके बाद ये सुबह उठते हैं, उठ के लाश को ले के गाड़ी में, जो गाड़ी में लाश थी उसको दूसरे पेट्रोल पंप पे खड़ी कर देते हैं। एक रात उधर लाश रहती है इनकी। आगे से ये दूसरे दिन दोनों मिल के जाते हैं, जाके जो लाश है उसको, जो सेम है गंदा नाला है जिसमें फैक्ट्रियों का पानी जाता है केमिकल वाला, उसमें फेंक देते हैं। ये फेंक के फिर घर में इसी तरह रहते हैं। और जब बाबा को हो जाते हैं 2-3 माह, ये फिर खुफिया तौर पे निकाह भी कर लेते हैं। अच्छा, ये मामला वही था कि शादी के लिए जो है वो इंसिस्ट कर रहे थे, वालिद बेटी को इजाज़त नहीं दे रहा था और बेटी ने अपने आशना से मिलकर ये प्लान बनाया कि अपने वालिद को ही रास्ते से हटा दिया जाए, जो रास्ते का कांटा है उसे दूर कर दिया जाए। जी बिल्कुल, इन्होंने बाबा जो था वो शादी के लिए रजामंद नहीं था, उसको रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने उसका कत्ल कर दिया और लाश को उधर फेंक दिया। तो हमने और मेरी टीम ने, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने मुकम्मल हमने तफ्तीश करते हुए सारे जो हैं इसके तमाम शवाहिद आपने इकट्ठे किए? सारे शवाहद हमने इकट्ठे कर लिए हैं और इंशाल्लाह जो दोनों जो मुल्ज़मान हैं इनको हम करार वाकई सज़ा भी दिलवाएंगे। ये फैमिली कैसी आतिफ भाई? हमारे ज़राए बताते हैं कि बहुत ही मफलूकुल हाल हैं, बेचारे गरीब लोग हैं और यही इनका करता धरता था घर का सरबराह, इन बच्चों का बाप, जिसे इन्होंने प्लान करके मर्डर कर दिया। तो आप समझते हैं कि इंशाल्लाह पुलिस जो है इस मामले को पूरा अंजाम तक पहुंचाएगी और जो कल्प्रेट्स हैं उन्हें पूरी सज़ा दिलवाई जाएगी? जी शुएब भाई, ये इंतहाई गरीब आदमी है, कच्चा इनका मकान है जिसमें ये रह रहे हैं और इंतहाई गुर्बत की ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो
बाबा अशरफ था, यही इनका गाड़ी चला के रोज़गार इनको मुहैया करता था। तो हमने प्लान बनाया, इंशाल्लाह हम इनकी माली तौर पर भी मदद करेंगे। अल्लाह ताला आपको अजर भी दे, आपके लिए, आपकी टीम के लिए नेक तमन्नाएं हैं। नाज़रीन इकराम, ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जब तक हमारी पुलिस में हैं, शहर अमन का गहवारा रहेंगे, लोग खुद को महफूज तसव्वुर करेंगे। और ये वो ऑफिसर्स हैं जिनके होते हुए ये पब्लिक परसेप्शन जो है उसको डिनाई किया जा सकता है कि पुलिस आवाम का साथ नहीं देती, पुलिस हीले बहानों से काम लेती है, पुलिस डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करती है। नाज़रीन इकराम, एक रिपोर्ट का होना और फिर उस रिपोर्ट पे पुलिस का सेल्फ इंटरेस्ट लेके सिर्फ इसलिए कि जो कंप्लेनेंट है वो इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अपने घर का सरबराह हो चुके हैं, पुलिस ऑफिसर्स का सेल्फ इंटरेस्ट लेना और केस को पाया तकमील तक पहुंचाना, ये इस बात की दलील है कि हमारी पुलिस मुकम्मल पेशा वाराना महारत रखती है और तमाम कॉम्प्लिकेटेड केसेस को बग़ैर वसाइल के। नाज़रीन इकराम, ये नुक्ता इम्पॉर्टेंट है कि हमारी पुलिस के पास वसाइल की कमी है और हम एक्सपेक्ट यूरोप वाले रिज़ल्ट्स करते हैं जिस पे वसाइल के ना होने के बावजूद हमारी पुलिस खरा उतरती है। यहाँ पे एक बेटी ने अपने आशना से मिलकर अपने बाप को रास्ते से हटाया, पुलिस ने इंटरवीन किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और जब मैटर सामने आया तो उस खातून को उसके आशना जो अब उसका हस्बैंड भी है समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO खुर्डियावाला ने बताया कि इस केस को ज़रूर मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ताकि लोगों का मज़ीद भरोसा कानून पर, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर बढ़ता रहे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और जाना कि कैसे एक सफ़ाक बेटी ने अपनी हवस की खातिर अपने आशना से मिलकर अपने बाप को कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन सवाल मुआशरे पे है कि कब तक हम अपनी जिनसी तस्कीन और झूठी अनाओं की खातिर अपने रिश्तों को कुर्बान करते रहेंगे। बाप जैसा मुकद्दस रिश्ता, जिसने जन्म दिया, जिसने परवान चढ़ाया, अगर हम इस रिश्ते की लाज नहीं रख सकते तो शायद हमारी इंसानियत पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।